हेलो नमस्कार અને વેલકમ ધોરણ 9 થી 12 વાળા વહાલા વિદ્યાર્થી મિત્રો, આપ સૌનું સ્વાગત છે આપણે આ આશુતોષ વિદ્યાલય ચેનલમાં. અને આજના વિડીયોમાં ગુજરાતીના એક તાસ દરમિયાન મેં તમને જેમ વાત કરી કે અમુક બાબતો પાઠ્યપુસ્તકમાં ન આપેલી હોય, દાખલા તરીકે નિબંધ, અર્થવિસ્તાર, અહેવાલ, પત્ર વગેરે આપણે પેપરમાં લખવાના થાય, તો એવી જ રીતે એક્ઝેક્ટલી હિન્દીમાં પણ નિબંધ, પત્ર, અમુક કહાની, પછી વિચાર વિસ્તાર, હિન્દીમાં એને વિચાર પલ્લવન કહેવાય, આવી બધી બાબતો આપણે પરીક્ષામાં પેપરમાં, હિન્દીના પેપરમાં લખવાની હોય. તો આજે આપણે હિન્દી વિષયમાં એવા જ એક ટૉપિક વિશે વાત કરશું. નાના હતા પ્રાથમિક શાળામાં આપણે ભણતા ત્યારે વાર્તાઓ બહુ સાંભળી હોય. વાર્તાને હિન્દીમાં કહાની કહેવાય. વાર્તા લખતા ન આવડે પણ કોઈ વાર્તા કરતું હોય તો એક ધ્યાન થઈ અને સતત આપણે એમાં ઉત્સુક બની રહીએ કે હવે શું થશે, હવે શું થશે, એટલે આપણને વાર્તા સાંભળવાનો શોખ હોય. એવી જ રીતે હિન્દીમાં વાર્તાને કહાની તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. બસ ઝાઝો ફેર નથી, ખાલી ભાષામાં ફેર છે. આપણે ગુજરાતીમાં વાર્તા સાંભળતા અને આપણને રસ પડતો, એમ અત્યારે આપણે હિન્દી વિષયમાં પેપરમાં વાર્તા લખવાની છે, હવે સાંભળવાની નથી. સાંભળવાનો સમય ગયો, હવે આપણે લખવાનું બતાવવાનું કે વાર્તા આવી રીતે લખાય. પણ વાર્તાને હિન્દીમાં કહાની કહેવાય એટલું આપણે ધ્યાન રાખી અને કહાની લેખન માટે કેવી રીતે કાર્ય કરવું, કહાની કેવી રીતે આપણે પેપરમાં લખવી, ઓલા મુદ્દાઓ આપેલા હોય એના આધારે, એના વિશે અભ્યાસ કરીને આજે આપણે સમજ પ્રાપ્ત કરવાની છે. તો સૌથી પહેલી વાત, આપણા પ્રશ્નપત્રમાં મુદ્દાઓ આપેલા હશે કહાનીના. એ મુદ્દાઓના આધારે કહાની કેવી રીતે લખવી એનો આપણને ખ્યાલ હોય તો કહાની આપણે સારી રીતે, અસરકારક રીતે લખી શકીએ. અને બીજી વાત કે જો જેવી કહાની લખવી જોઈએ એવી આપણે ખરેખર લખી હોય તો આપણને એમાંથી માર્ક પણ સારા મળી શકે. એટલે કહાની કેવી રીતે લખવી, તેમાં કઈ કઈ બાબતોનું ધ્યાન રાખવું, એ બધી બાબતો વિશે આજે આપણે અભ્યાસ કરીએ અને સમજ પ્રાપ્ત કરીએ. એટલે આજનો આપણો ટૉપિક, આજનો આપણો વિષયાંક કહાની લેખન છે. બરાબર, તો જોઈએ આપણે. હવે પહેલી વાત, કહાની લેખન આપણે કરવાનું છે તો આપણને એ વાતનો ખ્યાલ હોવો જોઈએ કે કહાની કેવી રીતે લખવી, કહાની લેખનમાં કઈ કઈ બાબતોનું ધ્યાન રાખવું, કહાની લેખન કરતી વખતે કેવી કેવી બાબતોની ચોકસાઈ રાખવી, એનો જો આપણને પૂરેપૂરો ખ્યાલ હોય તો કહાની આપણે સારી રીતે લખી શકીએ. જેને કહાની લેખનની અમુક બાબતોનો ખ્યાલ જ નથી એ વિદ્યાર્થીઓ સારી રીતે કહાની નથી લખી શકતા. ઘણા શું કરે, ટૂંકમાં કહાની પૂરી કરી દે, અથવા ઘણા એવી વિચારધારાવાળા હોય વિદ્યાર્થીઓ કે જેમ વધારે મોટી કહાની લખશું એમ વધારે માર્ક મળશે, એટલે એ પાછા પાના ઉપર પાના 2-2.5 ભરી દે એવું બને. કેમ કે વધુ માર્ક લાવવાની ઈચ્છા હોય તો પેપર જોનારને જોઈને જ ખ્યાલ આવી જાય કે એટલા બધા પાના કહાનીમાં હોય નહીં ક્યારેય, એટલે ઉલટા માર્ક તોડવાનું કામ થાય. એટલે આપણે કહાની લેખન માટે પાયામાંથી જ તે અમુક બાબતોની જાણકારી મેળવી લઈએ જેથી આપણે અસરકારક રીતે કહાની લેખન કરી શકીએ. બરાબર, તો સૌથી પહેલી વાત આપણે અહીં જોઈએ તો કહાની લેખન માટે રૂપરેખા કો ધ્યાન સે પઢીએ. અમુક બાબતોને આપણે અહીંયા ધ્યાનમાં રાખવાની છે કહાની લેખન માટે. કેવી કેવી, તો કે કહાની લેખન કી રૂપરેખા કો ધ્યાન સે પઢીએ. देखना, रूपरेखा को ध्यान से पढ़िए. ये है हमारी पहली बात यहाँ ध्यान में रखने जैसी कि जब हम कहानी लिखेंगे तब सबसे पहले वो जो मुद्दे दिए गए हैं इसमें, वो मुद्दे के बारे में हम पहले कुछ विचार करेंगे, फिर कहानी लिखेंगे. मुद्दे को पढ़े बिना तो हम कहानी लिख नहीं सकते. इसलिए वो जो छोटे छोटे मुद्दे दिए गए हैं कहानी लेखन के लिए, जिसके आधार पर हमें कहानी लिखनी है, उन्हें सबसे पहले ध्यान से पढ़िए. देखना, शब्द पर ध्यान दीजिएगा. मैं दूसरी बार फिर से शब्द यूज़ करता हूँ, ध्यान से पढ़िए. ध्यान से, बस यूँ ही पढ़ने के लिए पढ़ लिया ऐसा नहीं है, ध्यान से पढ़ना है.
तब जाकर हमें कहानी का शीर्षक क्या हो सकता है, कहानी में से क्या सीख मिल सकती है, कहानी कैसे हम लिखेंगे, इन सभी बातों का अंदाज़ा आ सकता है। इन सभी बातों से हम पहले से ही वाकिफ़ हो सकते हैं अगर हमने ध्यान से इसकी रूपरेखा को पढ़ा तब। ठीक है, तो पढ़ने के बाद हमें दूसरी बात जो ध्यान में रखनी है ये वो है कि कहानी का शीर्षक। अब देखिए, शीर्षक की जब बात आती है तब हमें थोड़ा मन में संकोच होता है, कौन सा शीर्षक उचित होगा, कौन सा शीर्षक हम दे सकते हैं। इन सभी छोटी छोटी बातों को लेकर हम अपने मन में बहुत से विचार एकत्रित करते हैं और फिर क्या होता है समझ में नहीं आते, हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि इस कहानी को शीर्षक क्या देना चाहिए। दूसरी बात वो ध्यान में रखनी है कि हमें उचित असरकारक शीर्षक देना है। क्यों? जो हमारा शीर्षक सही होगा, सच्चा होगा, तो कहानी देखने वाले को शीर्षक देखते ही ख्याल आ जाएगा कि आपको कहानी लेखन की सभी बातों का ख्याल है और आपने कहानी असरकारक ही लिखी होगी। तो हमें शीर्षक ऐसा कुछ इसमें से खोज कर लिखना है कि हमारी कहानी की सार्थकता स्पष्ट करता हो। कहानी असरकारक लिखी है इस बात का शीर्षक देखते ही पता चल जाता है। ठीक है, तो अब हम देखते हैं शीर्षक लेखन में सबसे पहली बात ध्यान में क्या रखनी है। एक बात ध्यान में रखनी है कि अगर हमें शीर्षक शुरुआत से समझ में नहीं आया तो पहले शीर्षक के लिए थोड़ी जगह छोड़ देनी है, फिर कहानी लेखन शुरू कर देना है। बहुत से छात्र ऐसा करते हैं कि प्रश्न का क्रम लिखकर तुरंत वहाँ से पहली ही लाइन से कहानी लिखने का शुरू कर देते हैं। फिर बाद में याद आता है कि इसमें शीर्षक लिखना तो मैं भूल गया, अब इसको शीर्षक कैसा दिया जाए, कहाँ दिया जाए, वहाँ जगह ही नहीं होती। इसलिए पहले थोड़ी जगह छोड़ दीजिए शीर्षक के लिए, फिर कहानी लिखिए। कहानी लिखते ही, कहानी पूर्ण करते ही आपको शीर्षक इसका समझ में आ जाएगा। तो पहली बात मैं यहाँ आपकी जानकारी के खातिर लिखता हूँ, थोड़ी जगह छोड़ दीजिए, कहानी के शीर्षक के लिए जगह छोड़ दें। अगर आपने थोड़ी जगह छोड़कर कहानी लिखना प्रारंभ कर दिया एक बार तो फिर आपको शीर्षक समझ में आ जाएगा। दूसरी बात, शीर्षक कैसा देना चाहिए, यह प्रश्न हमारे मन में अवारनवार खड़ा होता है। देखिए, ध्यान से देखिए, एक बात मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले हमें इस बात का ध्यान रखना है कि कहानी जो हमने लिखी है, इस कहानी में कौन सा प्रसंग, कौन सी घटना मुख्य थी, इसी के आधार पर हम कहानी का शीर्षक दे सकते हैं, टाइटल दे सकते हैं। इसलिए पहले तो हमें कहानी में आने वाले प्रसंग पर ध्यान देना होगा। ठीक है, प्रसंग, प्रसंग को घटना भी कह सकते हैं। ठीक है, दूसरी बात, कहानी का शीर्षक हम इस कहानी का जो मुख्य पात्र है, नायक या तो फिर कोई नायिका, कोई भी पात्र है, उस पात्र के नाम से भी हम शीर्षक दे सकते हैं। तो दूसरा शीर्षक, उचित शीर्षक देने के लिए जो हमें ध्यान में रखनी है वो दूसरी बात है पात्र। पात्र के आधार पर भी हम अच्छा शीर्षक दे सकते हैं। तीसरी बात है कि अगर हमने इस शीर्षक को, प्रसंग या कोई पात्र को उचित शीर्षक ध्यान में नहीं आया तो फिर तीसरा एक रास्ता हमारे पास मौजूद है और वो बहुत सरल और इफ़ेक्टिव है। इस कहानी में से हमें जो सीख मिलती है, जो बोध मिलता है, वो क्या है, उसे खोज निकालिए और इसे हम शीर्षक के रूप में ले सकते हैं। इसलिए इसका जो बोध होता है, सीख होती है, वो कहानी के शीर्षक के लिए हम ले सकते हैं। तो इन बातों के आधार पर हम कहानी को उचित शीर्षक दे पाएंगे। ठीक है, तो पहले रूपरेखा को पढ़िए ध्यान से, फिर शीर्षक के लिए जगह छोड़कर कहानी लिखना हम प्रारंभ कर दें। इन दो बातों को बातों के पूर्ण हो जाने के बाद अब हमें तीसरी कौन सी बात ध्यान में रखनी है? जो तीसरी बात ध्यान में रखनी है वो है क्रमशः विस्तार। क्रमशः विस्तार। अब इस दो शब्दों को हम समझते हैं। विस्तार का अर्थ होता है पल्लवन, व्यापकता। ठीक है, तो क्रमशः विस्तार, क्रमशः का अर्थ क्या होता है? जो यह रूपरेखा है, छोटे छोटे कहानी लेखन के मुद्दे दिए गए हैं, इन सभी मुद्दों को हम क्रमबद्ध रूप से एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, इसी तरह सभी मुद्दों को विस्तृत करेंगे, इसका फैलाव करेंगे, इसके बारे में कुछ अपनी ओर से ज़्यादा लिखेंगे। ठीक है, तो तीसरी बात है क्रमशः विस्तार। और इसके बाद चौथी बात है अपनी ओर से कुछ जोड़े, इसमें
नंबर 4, अपनी ओर से कुछ जोड़े। इसका अर्थ होता है कि हम कोई भी मुद्दे के बारे में कितना जानते हैं, कितना लिख सकते हैं, वो अपनी ओर से इसमें लिखना है। ठीक है, इन 4 बातों को ध्यान में रखना है। फिर इससे आगे हम देखें तो 5वीं बात, कहानी लेखन के लिए हमें कौन सी ध्यान में रखनी जैसी है कि कहानी को 15-20 पंक्तियों में लिखें। कहानी को 15-20 पंक्ति में ही लिखें। शुरुआत में आप लोगों को मैंने बताया था, बहुत से छात्र क्या करते हैं, कहानी को बहुत ज़्यादा लंबी करते हैं, लिखते हैं। ऐसा नहीं करना है। 15-20 पंक्ति तो इनफ हो जाती है। शुरुआत की 5 पंक्ति, फिर मध्य की 10-15 पंक्ति, टोटल मिला के 15 हुई। फिर अगर आप चाहे ज़्यादा तो 5 और ज़्यादा से ज़्यादा 25 तक आप पंक्तियाँ लिख सकते हैं। इतने में कहानी हम बहुत अच्छी तरह से लिख पाएंगे। और इससे आगे देखें हम, 6ठी बात है 3-4, या तो फिर आप चाहे तो 4-5 परिच्छेद में लिख सकते हैं। परिच्छेद का मतलब आप समझते हैं, गुजराती में તેને ફકરો કહેવાય। 4-5 ફકરાઓમાં કહાની આપણે લખવાની છે। આટલી વાત થઈ જાય પછી એક વાતને ધ્યાનમાં રાખવાનું છે કે આ 4-5 ફકરાઓ, इन 4-5 परिच्छेद एक दूसरे के साथ मिलते जुलते होने चाहिए। पहले परिच्छेद में कुछ और बात की, दूसरे परिच्छेद में इस बात के साथ कुछ लेना देना ही ना है, ऐसी दूसरी बात की। हम जो मुख्य विषय के बारे में बात कर रहे हैं उससे हम दूर हो गए, अलग हो गए, ऐसा नहीं करना है। लेकिन 4-5 परिच्छेद जो हम लिखते हैं वो एक दूसरे के साथ सुसंगत होने चाहिए। सुसंगत, कनेक्टिव, इसके साथ मिलता जुलता होना चाहिए। अब इससे आगे देखें हम तो 7वीं बात है शुद्ध भाषा। इसे थोड़ा हम, ठीक है, अब देखें 7वीं बात है शुद्ध भाषा। शुद्ध भाषा में हमें क्या बात ध्यान में रखनी है, छोटे छोटे वाक्य, छोटे छोटे सेंटेंसेस लिखने हैं। फिर क्या करना है, वो स्पष्ट होने चाहिए। बहुत से जटिल वाक्य हमें लिखना नहीं है, समझ में आ सके, तुरंत पढ़ सके। छोटे वाक्य में बहुत कुछ किया गया हो ऐसे वाक्य हम लिखेंगे। भाषा में स्पष्टता होनी चाहिए, कोई शब्द जटिल नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो इसी बात को हम पहले ध्यान में रखेंगे। फिर इससे आगे कहावतें या मुहावरे इसमें जोड़े। जैसे कि आपने कोई भी टॉपिक के बारे में अगर आप बात कर रहे हैं तो इसके अनुरूप कोई कहावतें हैं, થોડાક લીલા ને થોડાક પીળા બધું મિક્સમાં હાલે છે, પણ આપણે આપણા સમયને બચાવવાનો છે, એ વાતને ધ્યાનમાં રાખીને લીલું પીળું ધાળવે જવાનું છે, બરાબર। તો જુઓ કે તમે આ કોઈ પણ મુદ્દા વિશે વાત કરતા હોય ત્યારે એને અનુરૂપ કહાની અથવા કહેવત अथवा कोई मुहावरा अगर आपको समझ में आ गया, याद इसके अनुरूप मिल गया, तो आप इसमें इन्वॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, लिख सकते हैं। इससे आगे एक बात हमें ध्यान में रखनी है, वो क्या है, विराम चिन्ह। ये बहुत इफ़ेक्टिव हो सकता है कहानी के लिए। पहली बात, कहानी में देखिए जो पात्र होते हैं आपस में एक दूसरे के साथ बातचीत करते हैं। पहला पात्र या दूसरा पात्र, कोई भी पात्र अपने सामने वाले पात्र से कुछ बात करते वक्त कुछ पूछता है, प्रश्न करता है, तब जो वाक्य का भावार्थ है वो प्रश्नार्थ भावार्थ होगा, प्रश्नार्थ होगा। तो ऐसे सेंटेंस पूरे करने के बाद हम प्रश्नार्थ की निशानी करेंगे। अगर कोई पात्र कहानी में किसी घटना या दृश्य को देखकर कहता है वाह, या तो फिर आह क्या है, कैसा है, ऐसा भाव उद्गार उनके मुंह से निकलता है, तो वहाँ हम उद्गार चिन्ह की निशानी या तो फिर आश्चर्यवाचक की निशानी करेंगे, इसका मार्क करेंगे। ठीक है, अगर ये मार्क, ये विराम चिन्ह हमने उचित जगह पर नहीं लिखे तो क्या होगा, कहानी का जो भावार्थ हम प्रकट करना चाहेंगे वो उचित रूप से प्रकट नहीं कर पाएंगे। ठीक है, अब इससे आगे देखते हैं एक बात और, रोचक होनी चाहिए कहानी हमारी। क्या होनी चाहिए, रोचक।
इसके बारे में आपको बताता हूँ मैं। हमारी कहानी रोचक होनी चाहिए। अब रोचक का अर्थ क्या होता है? देखिए, जब हम कोई फिल्म देखते हैं, मूवी देखते हैं, तब हमारी इसमें अंत तक उत्सुकता बनी रहती है। अब क्या होगा, इसके बाद क्या होगा, आगे क्या होगा, इसके बाद इसके बाद इसके बाद क्या होगा। इसी तरह जब तक वो पूरा नहीं हो जाता तब तक हमारी उत्सुकता, हमारी आतुरता इसमें बनी रहती है, क्या होगा क्या होगा। तो बस इसी भाव को रोचकता कहते हैं। हमारी कहानी भी इसी तरह हमें लिखनी है कि जब तक वो पूर्ण न हो जाए तब तक हमारी आतुरता, जो पढ़ने वाला है उसकी उत्सुकता, वो पढ़ने में बनी रहे। इस बात का हमें सबसे पहले ध्यान रखना है, ठीक है। तो इसे कहते हैं रोचकता। रोचकता के बाद अब एक और बात हमें ध्यान में रखनी है, अनावश्यक बातें नहीं करनी है, ठीक है। 11वां नंबर पर अनावश्यक बातें न लिखें। जो बात कहानी के साथ मिलती जुलती नहीं है, सुसंगत नहीं है, जिस बात को, जिस सेंटेंसेस को, जिस वाक्य को कहानी के साथ कुछ लेना देना नहीं है, ऐसे वाक्यों में कहानी में नहीं लिखना है। अगर ऐसा करेंगे तो क्या होगा, कहानी बहुत लंबी हो जाएगी, जो इफ़ेक्टिव बननी चाहिए कहानी वो नहीं बनेगी। फिर हम अपनी कहानी को उचित रूप से नहीं लिख पाएंगे। लिखते वक्त भी हमें बहुत से प्रश्न अपने दिमाग में खड़े होंगे कि अब क्या, कैसे लिखे, क्यों लिखे। इसीलिए हम जो लिखते हैं इन सभी बातों में अनावश्यक बातों का बिल्कुल समावेश नहीं करना है। इतनी बात समझ में आ गई। तो अब हम देखें, इन सभी बातों को आपने जाना, आपने समझा, आपने सीखा। अब अगर आपको कहा जाए तो कहानी लिखते वक्त आप इन सभी बातों को ध्यान में रखेंगे, इसको अपने दिमाग में, अपने अंदर केंद्र में रखकर आप लिखेंगे। अनावश्यक बातें नहीं लिखेंगे, विराम चिन्ह का उपयोग करेंगे, इसी तरह कहानी को रोचक बनाएंगे, शुद्ध भाषा, सभी बातों को ध्यान में रखकर आप कहानी लिखेंगे, ठीक है। तो कहानी लेखन के बारे में हमने इतनी जानकारी पाई। अब आगे देखते हैं। पहली बात, ગુજરાતીમાં થોડીક વાત કરું, કારણ કે આ બધી સમજૂતી મેં તમને હિન્દીમાં એટલા માટે આપી કે તમે હિન્દીમાં થોડા ઘણા પણ નવા વાક્યો, નવા શબ્દો, નવી વાતો, નવી બાબતો સાંભળો, શીખો। એના કારણે તમારું હિન્દીનું શબ્દ ભંડોળ, ભાષા સમૃદ્ધિમાં વધારો થાય, અથવા તો તમારી જે તે વાત તમારી સાથે હું કરી રહ્યો છું તેને સાંભળવા માટેની એનું જોડાણ છે એ હિન્દી ભાષામાં ચાલુ રાખીએ તો હિન્દીનું એક વાતાવરણ ઊભું થાય તમારી પાસે। સતત તમારા મનમાં એક એવી પ્રોસેસ શરૂ થાય કે તમે પછી હિન્દી સાથે હિન્દીના માહોલમાં આવી જાઓ, એટલે તમે હિન્દીમાં અસરકારક રીતે લખી શકો, બરાબર। એટલા માટે આ બધા મુદ્દાઓની સમજૂતી આપણે તમને હિન્દીમાં રજૂઆત કરી। હજી આપણે કહાનીનું ઉદાહરણ તમને હું બતાવું એકાદું, અને પછી ઉદાહરણ તમને સમજાવું, એટલે ફરી પાછું તમને હિન્દીમાં હું વાત કરું, એટલે તમને હિન્દી કહાની લેખન હિન્દીમાં કરવાનું છે, એટલે તમને એનો આખો એક અંદાજ આવી જાય, બરાબર। ચાલો, તો હવે આપણે બીજા પેજ ઉપર જઈ, એકાદી કહાની જોઈ, કહાનીના મુદ્દા કેવા હોય, કહાની કેમ લખવી, આ બધી બાબતોને ધ્યાનમાં રાખીને એના વિશે હું તમને રજૂઆત કરું, બરાબર। જુઓ, સૌથી પહેલાં તો અહીંયા મુદ્દાઓ આપેલા છે તમારી નજર સામે। આવી રીતે પ્રશ્નપત્રમાં પણ આપણને કોઈ પણ કહાની લેખન માટેના મુદ્દાઓ આપેલા હશે, બરાબર। હવે પહેલો નિયમ શું હતો આપણો कि कहानी की रूपरेखा को, आने रूपरेखा क्या है, ध्यान से पढ़िए, याद है ना, ध्यान से पढ़िए। देखिए, पहली बात, पढ़ाई में कमज़ोर लड़का, तो इसका मतलब हमें स्पष्ट समझ में आ गया कि कोई भी लड़का एक था, वो अपनी पढ़ाई में कमज़ोर था, ठीक है। तो वो पढ़ाई में कमज़ोर था, इसके बारे में हमें कुछ लिखना है, ठीक है। इससे आगे देखें, निष्फल होना, ये तो सीधी और सरल बात है दोस्तों। अगर पढ़ाई में कमज़ोर होगा तो निष्फल ही होगा, असफलता मिलेगी। हमारे साथ ऐसा कभी नहीं होना चाहिए, इस बात को हमें ध्यान में रखना है, ठीक है। तो फिर ऐसा ना हो हमारे साथ, इसके लिए क्या करना है, पढ़ाई में हमें कमज़ोर नहीं रहना है, हमें मजबूत बनना है हमारे कोई भी क्षेत्र में। इन सभी बातों का ही इस कहानी में
मैं आपको समझाऊंगा जब कहानी के बारे में बात करेंगे तब। तो फिर इससे आगे देखिए, निष्फल होता है, फिर क्या होता है, बुरी बातों की असर। जब लोगों को निष्फलता मिलती है तब सब लोग इसके मन में नेगेटिव नकारात्मक भावनाएं खड़ी कर देते हैं, नकारात्मक विचार उनके मन में खड़े कर देते, बोलते रहते हैं। शब्दों का इतना इफेक्ट, शब्दों की इतनी इफेक्ट, इतनी असर हमारे माइंड पर, हमारे दिमाग पर हो सकती है कि हम बीमार भी हो सकते हैं, इसमें से अच्छे भी हो सकते हैं। इसी तरह हम अपने जीवन में चाहे कोई भी व्यक्ति, वस्तु, परिस्थिति को हम पा सकते हैं, गुमा सकते हैं। इनका बहुत बड़ा प्रभाव है, ये बहुत मनोवैज्ञानिक बाबत है, इसके बारे में हम ज़्यादा बात नहीं करने वाले, ठीक है। तो पहले सबसे हम देखते हैं इस बात को कि बुरी बातों की असर होती है तो क्या होता है, आत्महत्या का विचार आता है। अब इस बात को लिखना है, कहानी, छोटा लड़का, कमज़ोर, निष्फल होना, बुरी बातों की असर, निष्फल लोगों को तो लोग सलाह देते ही रहते हैं। फिर आत्महत्या का विचार आना स्वाभाविक है, क्योंकि कोई इंसान अपने मन से, अपने दिमाग से, अपने दिल से कमज़ोर हो जाएगा तो फिर अपने जीवन में आने वाली समस्याओं का सामना नहीं कर पाएगा। तो क्या होगा, वो बुरे विचार करेगा ही, क्योंकि उसका माइंड है, उसका जो विचार है वो ब्लॉक हो जाएगा। जो विचारों का खुला आकाश होना चाहिए, धैर्य होना चाहिए हमारे अंदर, सब्र करना हम नहीं सीख पाते। हमारे जीवन में आने वाली समस्याओं में हमें कैसे पैर रखना है, कैसे आगे बढ़ना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है, क्या योग्य है, क्या अयोग्य है, क्या उचित है, क्या अनुचित है, क्या सच है, क्या झूठ है, क्या सही है, क्या गलत है, इन सभी बातों का, इन सभी झंझावातों में से हम तफावत ढूंढ पाएंगे और सही, सच, योग्य को हम अपनाएंगे, स्वीकार करेंगे। झूठ, बुरा और गलत जो है उसे हम छोड़ देंगे, त्याग देंगे। लेकिन इन सभी बातों को हमारे अंदर तब जाकर हम अपने मन में इसको खड़ी कर सकते हैं जब हमारे अंदर विवेक शक्ति, यानी कि हम खुद का कंट्रोल ना खोए और बुरे विचार से प्रभावित ना हो, तब हम ये सब कर सकते हैं। लेकिन जो प्रभावित हो जाता है शब्दों के कारण, वो आत्महत्या का विचार करता है। हमें कभी ऐसा नहीं करना चाहिए। इन सभी सीख हमें जीवन में मिले, इसीलिए ही पढ़ाई का यह सब महत्व है। अब आगे देखें, जंगल में जाना। छोटा था, उसने सोचा होगा कि घर पे अगर हम सुसाइड का, आत्महत्या का प्रयास करेंगे तो कोई रोक लेगा, कोई देख लेगा, ऐसा ना हो इसीलिए जंगल में जाना। और फिर एक बंदर का बच्चा, वहाँ जंगल में बंदर का बच्चा उन्होंने देखा होगा, बंदर के बच्चे की बात की गई। फिर पेड़ पर चढ़ने का, पेड़ पर चढ़ने में असफल, वो पेड़ पर चढ़ने की कोशिश कर रहा था, ये बात यहाँ दिखाई गई है, और उसमें असफलता मिलती है। देखिए, इसे यहाँ असफलता मिलती है ना, निष्फल, इसी तरह यहाँ भी असफलता इस बच्चे को मिलती है। देखिए, इससे आगे बढ़े, फिर से प्रयास, किसका फिर से प्रयास, बंदर के बच्चे का, बंदर के बच्चे का फिर से प्रयास। तो ये थोड़ी इंटरेस्टिंग बात है, इसके बारे में हम आगे बात करेंगे, पहले इस रूपरेखा को पढ़ लेते हैं। फिर से प्रयास और सफलता, देखो, फिर से प्रयास और बंदर के बच्चे की सफलता। इससे आगे देखिए, लड़के का विचार बदलना, एक दृश्य को देखकर, एक घटना को देखकर इसका विचार परिवर्तित हो गया और फिर उन्होंने भी कुछ सोचा अपने मन में। देखो, फिर से प्रयास, यहाँ भी आया था फिर से प्रयास, यहाँ भी आया फिर से प्रयास, ये लड़के का फिर से प्रयास है। और इससे आगे सफलता और सीख जो हमें इस कहानी के अंत में मिलती है वो हमें लिखनी है। इन सभी बातों के बारे में हमने चर्चा की। एक बात और याद आती है मुझे, आपको बताता हूँ। इन 11 बातों के बारे में हमने चर्चा की, एक बात और इसमें हम इन्वर्ट करते हैं। 12 नंबर है, ये आखिरी और अंतिम 12 नंबर। कहानी में से जो कुछ बोध मिलता है, कोई सीख मिलती है, वो तो लिखनी होगी ना, क्योंकि ये तो उसका प्राण है। कहानी लेखन का हेतु ही कुछ ऐसा है कि हमें कुछ इसमें से जानना, सीखना मिले। तो इसीलिए अंतिम है सीख। ठीक है, अब हम अपने फिर से कहानी वाले पेज पर जाते हैं और देखते हैं। अब देखिए, कहानी के इन सभी मुद्दों के बारे में हमने बात की। ठीक है, एक एक मुद्दे को हम पढ़ते हैं और इसके बारे में बात करते हैं। चलो, अब मैं कहानी यहाँ पूरी लिखूँगा तो क्या होगा, हमारा समय ज़्यादा हो सकता है और लिखने में और बात करने में आप लोगों को कन्फ्यूज़न होगा। क्यों?
क्योंकि आपने पहले रूपरेखा को पढ़ ली है, फिर मैंने जो बात की थी इस रूपरेखा के आधार पर, इससे आपको कहानी समझ में भी आ गई है, आधी से ज़्यादा कहानी समझ में आ गई है। अब आपको समझ में क्या नहीं आया है, इसमें इन्वॉल्व करने वाले कुछ बहुत से थोड़े से शब्द या तो सेंटेंसेस जो आप नहीं जानते, इसके बारे में मैं आपको बोलकर बात करके चर्चा करते ही आपको समझाऊंगा और कहानी पूरी आपके समक्ष रजू करता हूँ। क्योंकि इसके बाद आगे भी हमारे पास एक और कहानी है, इसके बारे में भी हमें चर्चा करनी है, ठीक है। तो पहले देखिए, सबसे पहली बात, दूसरी बात, पढ़ाई में कमज़ोर लड़का, इसकी बात की है। तो पहले क्या करना है, कहानी का प्रारंभ हमें इस तरह नहीं करना है कि एक लड़का था और पढ़ने में कमज़ोर था, तब तो एक मुद्दा पर बात हो गई, ऐसा नहीं करना है। इसको थोड़ा अपनी ओर से कुछ सेंटेंसेस इसमें इन्वॉल्व करके कहानी को रसप्रद बनाना है। जैसे कि एक बहुत सुंदर सा गांव था या तो फिर नगर था, उनमें एक किसान रहता था, वो थोड़ा गरीब था, उनको एक लड़का था उनका, वो लड़का पढ़ाई में कमज़ोर था। अपनी पाठशाला में जो पढ़ता था वह अभ्यासक्रम को वो अच्छी तरह से समझ नहीं पाता था और इसमें से वो कुछ सीख नहीं पाता था। बस इतना लिखा। तो आप देखिए, एक ही टॉपिक पर हमने थोड़ा सा लिख दिया, शुरुआत कर दी, प्रस्तावना हमने रख दी। बस इसी तरह सभी मुद्दे को हमने दूसरी बात की थी ना कि क्रमशः विस्तार कीजिए। क्रमशः विस्तार का अर्थ क्या होता है, हमने यहाँ बात की थी, क्रमशः विस्तार। शीर्षक के लिए तो जगह छोड़ दी देनी है, ठीक है। क्रमशः विस्तार। अब दूसरे मुद्दे का क्रमशः विस्तार करते हैं कि पढ़ाई में कमज़ोर होने के कारण वो अपने इम्तिहान में, अपनी परीक्षा में निष्फल होता है। पहले तो सफल होने का वो प्रयास करता है, लेकिन उनकी अपनी कमज़ोरियों के कारण वो निष्फल होता है। फिर यहाँ हम पहला परिच्छेद पूरा कर सकते हैं। फिर आगे दूसरा पैराग्राफ, नया पैराग्राफ। उनके निष्फल होने के कारण आसपास के लोगों ने उन्हें बुरे वाक्य कहने शुरू कर दिए। देखिए, बुरी बातों की असर। कोई अगर हमें कुछ भी कहे बुरा, तुम ये नहीं कर सकते, तुम वो नहीं कर सकते, तुमसे ये नहीं हो सकता, तुमसे वो नहीं हो सकता, सब बकवास यहाँ से सुनकर यहाँ से बाहर निकल देना है, ठीक है। किसी का कुछ भी नहीं सुनना है, हमें अपने अंदर धैर्य रखना है, अपने आत्मविश्वास अपना रखना है। अगर हमें कोई भी कहे कि तुमसे ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, ये सब बकवास आपको समझना है। क्यों? हमारे अंदर भी ईश्वरीय शक्ति का अंश है, समग्र ब्रह्मांड में, समग्र यूनिवर्सल में व्यापक है, जो एक देवी ईश्वरी शक्ति जिसका कोई आकार नहीं है लेकिन फिर भी वो सभी जगह व्यापक है। इसी का ही एक अंश, ईश्वर का अंश, आत्मा हमारे अंदर विराजमान है। हम सब कुछ कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते? हमें तैयारी पहले से अच्छी तरह से करनी है, जिसके कारण तब जाकर हम अंत में अपनी परिणाम के रूप में सफलता पा सके, ठीक है। तो लेकिन इसके ऊपर क्या हुआ, बुरी बातों का असर हुआ। बुरी बातों कैसी थी? देखिए, मैं ये आपके साथ जो जनरली बातें कर रहा हूँ, ये सभी बातें आपको कहानी में नहीं लिखनी है। ये तो मैं आपको कहानी के साथ साथ कहानी के कारण जो हमें जानना मिलता है इसके बारे में बात करता रहता हूँ, ठीक है। आप लोगों को तो मान लीजिए इस मुद्दे के बारे में लिखना है तो सिर्फ इतना ही लिखना है कि आसपास के लोगों ने इस लड़के को निष्फल होने के कारण ऐसा कहना शुरू किया कि तुम कुछ नहीं कर सकते, तुम अपने कार्य में निष्फल हो, तुम्हें अभी आत्महत्या कर लेनी चाहिए, तुम्हें पढ़ना छोड़ देना चाहिए, तुम्हें घर से भाग जाना चाहिए। ऐसी सभी बातों इस लड़के के सामने प्रस्तुत करना शुरू कर दी। तो फिर क्या हुआ, देखिए, आत्महत्या का विचार आया। असर, बुरी बातों की असर हो गई इस लड़के पर। अब बुरी बातों की जब असर होगी तब व्यक्ति कुछ भी करने को तैयार हो जाता, इसलिए आत्महत्या का विचार आया। फिर जंगल में गया। पहले मैंने आपको बताया था इसी तरह, घर में अगर कोई रोक ले, देख ले, हो सके ना हो सके, इसलिए जंगल में वो आत्महत्या करने के लिए जाता है। यहाँ हम अपना दूसरा पैराग्राफ पूरा कर सकते हैं। फिर आगे हम तीसरा पैराग्राफ के बारे में बात करते हैं। हमने कहा था कि 4-5 पैराग्राफ में ही लिखना है, तो इसका मतलब ये नहीं हुआ कि 4 या 5 पैराग्राफ में ही लिखना है, ठीक है। ये तो सिर्फ देखिए 4-5 लिखा है, इसका मतलब ये हो सकता है कि अगर आप चाहे तो 6 भी लिख सकते हैं। लेकिन फिर भी अगर कहानी आप ज़्यादा अच्छी
रोचक बनाना चाहते हैं तो 7 पैराग्राफ भी हो जाए तो भी कोई प्रश्न नहीं, लेकिन अंदाजित बात की है, ठीक है। तो फिर हम यहाँ से अपना तीसरा पैराग्राफ लिख सकते हैं कि वह जंगल में अपने गले में रस्सी डालकर एक पेड़ से लटक कर आत्महत्या का प्रयास कर रहा था। तब अचानक कुछ बंदरों की टोली ने आकर इसके पास से थोड़े दूर एक पेड़ पर चढ़ने का शुरू किया। सभी बंदर एक के बाद एक पेड़ पर चढ़ चुके थे और एक छोटा सा बच्चा था बंदर का। उन्होंने ट्राई किया लेकिन वो निष्फल हो गया। वो अपने पेड़ पर नहीं चढ़ पाता था। फिर से ट्राई किया, फिर से निष्फल हो गया। उन्होंने प्रयास करना शुरू रखा। देखिए, ट्राई तो मैं आपके साथ बात कर रहा हूँ इसलिए जनरली शब्द बोल रहा हूँ। ट्राई शब्द इंग्लिश है, आपको तो कहानी लिखते हो तो कोई इंग्लिश वर्ड यूज़ नहीं करने हैं, ठीक है। इंग्लिश शब्दों का उपयोग नहीं करना है क्योंकि कहानी हिंदी में लिखनी है ना, इसलिए। तो फिर वो चढ़ता है, गिरता है, फिर चढ़ता है, फिर गिरता है। चढ़कर गिरना, गिरकर चढ़ना, चढ़कर गिरना, गिरकर चढ़ना। नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। गिरकर चढ़ना, चढ़कर गिरना, गिरकर चढ़ना। सुना है ना। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है, मेहनत उनकी आखिर बेकार नहीं होती है। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। यह बात मैंने इसीलिए आपके सामने प्रस्तुत की कि हमने जब कहानी लेखन के मुद्दे को ध्यान में रखने की बात की थी तब कहा था, याद है, कोई मुहावरा या कहावत आपको याद आए तो लिख सकते हैं। यह आप अवतरण चिन्ह के में लिख सकते हैं, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं हो सकती है। इसको हम लिख सकते हैं। समझ में आ गया। इसी तरह बंदर के बच्चे ने अपना प्रयास शुरू रखा और वह एक बार अपना एक प्रयत्न के बल के कारण पेड़ पर वो चढ़ जाता है। इसी बात देख लिया, किसने देखा? एक बंदर का बच्चा पेड़ पर चढ़ने में असफल, बार बार असफल होने के बाद फिर से प्रयास और फिर से सफल होने के बाद फिर से प्रयास और वो हो गया सफल होने के बाद देखिए लड़के का विचार बदल गया। उन्होंने सोचा कि यह छोटा सा बंदर का बच्चा बार बार प्रयास करके सफल हो सकता है तो मैं क्यों नहीं हो सकता। देखा, कोई एक ऐसी घटना हमारे जीवन में कभी कभी ऐसी घट जाती है कि हमारे पूरे जीवन की विचारधारा को बदल देती है। इसी तरह इस लड़के के साथ भी हुआ। उसका विचार बदला। उन्होंने सोचा मैं जाऊँ, फिर प्रयास करूँ और फिर प्रयास करके सफल हो सकता हूँ। तो उन्होंने क्या किया, घर आके फिर से पढ़ाई शुरू की। देखिए, फिर से प्रयास, इसका अर्थ होता है फिर से प्रयास शुरू किया, अच्छी तरह से किया, अपनी पूरी शक्ति लगाकर, अपना पूरा आत्मविश्वास के साथ, अपने पूरे विश्वास के साथ उन्होंने पढ़ना शुरू किया और फिर वो सफल हो गए। सफलता मिल सकती है। जब भी कोई जीव, याद रखिएगा, भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को कहा है, रामानंद सागर ने जो कृष्णा सीरियल बनाई है इसमें आप अगर देखना, कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे पार्थ, जब भी कोई जीव दृढ़ संकल्पित होकर किसी एक काम के लिए बीड़ा उठाता है तब दिव्य शक्ति को स्वयं उसकी सहायता के लिए आना पड़ता है। हाँ, खुद ईश्वर उनको सहाय करने के लिए आता है। इसी तरह उन्होंने पूरे प्रयास किया, दृढ़ संकल्पित होकर फिर सफल हुआ। तो इसमें से हमें सीख क्या मिलती है? वो सीख हमें जो पैराग्राफ कंटिन्यू है इसमें नहीं लिखनी, इसके लिए अंतिम नया पैराग्राफ स्पेशल सीख प्रदान करने वाला लिखना है। वो तो शायद 1 लाइन का या तो फिर 2 लाइन का हो सकता है। क्या आप लिख सकते हैं, हम क्या सीख लिख सकते हैं इसमें से, इनके बारे में हम बात करते हैं। अभी शीर्षक के बारे में बात करनी बाकी है, ठीक है। सबसे पहली बात सीख के बारे में, अगर कोई जीव दृढ़ संकल्पित होकर किसी एक काम के लिए बीड़ा उठाता है तब वह सफल होता है। यह बोध, यह सीख हमें इस कहानी से उपलब्ध होता है, प्राप्त होता है, ठीक है। शीर्षक की बात करनी है। शीर्षक अब हम क्या दे सकते हैं इस कहानी को? टाइटल, सफलता का रहस्य, सफलता की कुंजी,
ये सब शीर्षक हम दे सकते हैं। ठीक है, सफलता का राज भी लिख सकते हैं। ठीक है, सफलता का रहस्य, ये है हमारी कहानी का टाइटल। कहानी खत्म हो गई। अब एक और बात, यह जो 12 पॉइंट के बारे में हमने बात की थी ना, इसमें से एक और थोड़ा अलग 13वां मुद्दा मैं आपको दिखाता हूँ। समय की मर्यादा को ध्यान में रखना है। अगर कहानी लिखने में आपने ज़्यादा देर कर दी तो प्रश्न पत्र के दूसरे क्वेश्चन लिखने में आपका टाइम ज़्यादा नहीं बचेगा, ज़्यादा समय नहीं बचेगा। इसीलिए आपको कहानी जितनी हो सके इतनी जल्दी लिखनी है, लेकिन इफ़ेक्टिव लिखनी है। ठीक है, वैसे तो हम 4, 5, 6 पैराग्राफ लिखेंगे, कम से कम 1.5-2 मिनट का एक पैराग्राफ होगा, तब जाके हम 5-6 मिनट के अंदर कहानी लिख सकते हैं। अगर आप दूसरे प्रश्न के उत्तर पहले दे चुके हैं, ज़्यादा समय हमारे पास है, तो फिर थोड़ा ज़्यादा समय हो जाए कहानी लिखने में तो भी कोई चिंता करने की बात नहीं है। ठीक है, हमने कहानी लेखन के मुद्दे को देखा, एक कहानी लेखन उदाहरण के रूप में लिया। अब दूसरे दृष्टांत की ओर हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, देखिए, एक सुहावना वन था। अब हम इस कहानी को किस तरह से लिखेंगे? एक सुहावना वन, वन में इंद्र का आगमन, आगमन के बाद सूखे तरु पर एक तोते को देखकर आश्चर्य। इंद्र का आगमन, सूखे तरु पर एक तोते को देखकर आश्चर्य, उन्हें आश्चर्य होता है इंद्र को। ठीक है, इससे आगे देखें, प्रश्न पूछना। वो तोते को प्रश्न पूछता है, क्योंकि वो तोता सूखे तरु पर बैठा था, कि हरे भरे तरु को छोड़कर सूखे पेड़ पर क्यों? शॉर्ट में लिखा है, यह मुद्दा है ना, इसलिए। उत्तर देता है तोता, बचपन का साथी है यह पेड़, मेरा बचपन का साथी है। तो इस बात को सुनकर इंद्र का प्रसन्न होकर वरदान मांगने को कहना कि बचपन के साथी को आप भूले नहीं हैं, तो फिर इसके ऊपर तुम लगातार बैठे हो, तो मैं तुम्हारे ऊपर प्रसन्न हुआ हूँ। इस सूख गया तो भी तुमने इसका साथ नहीं छोड़ा, इसलिए मैं प्रसन्न हूँ। देखो, वरदान मांगने का कहता है, तब तोते की इच्छा क्या होती है? तरु को फिर से हरा भरा कर दो, ऐसा वरदान मांगा। फिर क्या हुआ? तथास्तु, या तो फिर एवमस्तु। इंद्र तथास्तु कहता है या तो फिर एवमस्तु कहता है, इसका मतलब होता है कि ऐसा ही होगा। ठीक है, फिर तथास्तु कहने से बाद सीख। वैसे तो हम एक मुद्दा यहाँ और इन्वॉल्व कर सकते हैं, अगर हो भी सकता है। तथास्तु कहने के बाद तरु का लहराना। ठीक है, तरु का लहराना, और इसके बाद सीख। तथास्तु कह दिया, इसमें भी ये मुद्दा इन्वॉल्व हो ही गया है पहले से ही, इसमें से अलग से लिखने की कोई ज़रूरत नहीं। लेकिन क्योंकि तरु को फिर से हरा भरा कर दो, यह बात तो तोते ने की थी, तो इसके साथ तथास्तु कहा तो ये तो हो गया ही होगा। इसलिए तरु का लहराना यह लिखने की कोई और से आवश्यकता नहीं है। ठीक है, अब हम दूसरी बात करते हैं। देखिए, कहानी में हम प्रवेश करते हैं। चलिए, इस कहानी की रूपरेखा को हमने पढ़ लिया, बराबर। अब हम कहानी के बारे में बात करेंगे। कहानी में यहाँ पूरी लिखने वाला नहीं, क्योंकि हमारा समय ज़्यादा इसमें से जा सकता है, इसीलिए वेस्ट हो सकता है, ऐसा तो मैं नहीं बोल सकता, नहीं कह सकता, क्योंकि टाइम वेस्ट नहीं हो रहा है। हमारा समय हमारे जीवन घड़तर के लिए हम अभी दे रहे हैं।
इसलिए वेस्ट नहीं होगा अगर कहानी लिखूंगा तो भी। लेकिन लिखना इसलिए नहीं चाहता हूँ क्योंकि पहले भी मैंने आपको बताया कि मुद्दे को पढ़कर, रूपरेखा को पढ़कर ही आपको आधे से ज़्यादा कहानी समझ में आ गई, फिर इतना लिखने की ज़रूरत नहीं है। इन सभी मुद्दों के आधार पर मैं कहानी बोलता हूँ। आप ध्यान से सुनिए, इन बातों को ध्यान में रखकर मैं इस कहानी रजू करता हूँ, तब जाकर आपको कहानी लेखन समझ में आएगा। सबसे पहले एक हरा भरा बहुत बड़ा सुंदर वन था, वन या जंगल कुछ भी लिख सकते हैं। एक सुहावना वन, इतना ही लिखा है, तो हम अपनी ओर से इसमें ज़्यादा और क्या लिख सकते हैं। इसमें बहुत से अच्छे बड़े बड़े पेड़ पौधे थे, बहुत से पंछी कलरव कर रहे थे, सुंदर वेल इत्यादि वन की फूलों आदि, फूल गुल आदि सभी वन की शोभा बढ़ा रहे थे। इसी तरह इस एक सुंदर वन में देखिए इंद्र का आगमन। अब वह वन में देवों के राजा इंद्र एक दिन वहाँ से पसार होते हैं। इंद्र वहाँ से पसार होते हैं तो इसमें ज़्यादा कुछ ऐसा लिखने की ज़रूरत नहीं है, कैसे पसार होते थे, क्यों पसार होते थे, ऐसा कुछ प्रश्न उठाने का यहाँ सवाल ही नहीं है। हमने आपको पूछा भी नहीं है क्यों पसार होते, ठीक है। लेकिन एक बात आश्चर्यकारक है कि सूखे तरु पर एक तोते को देखकर आश्चर्य। अब क्या हुआ देखो, कहानी में हमने पहले ही परिच्छेद में कह दिया था कि वह उपवन हरा भरा था, हरे भरे पेड़ पौधों से, तरुओं से वो जंगल था। तो फिर क्या हुआ, इतने अच्छे हरे भरे पेड़ों में एक पेड़ सूखा पेड़ था, ठीक है। देखिए सूखे पेड़ को देखकर इंद्र को आश्चर्य होता है कि इतने पेड़ हरे भरे हैं तो यह एक पेड़ सूखा क्यों है। फिर इसके आश्चर्य का पार न रहा, थोड़ा आगे चलकर इस पेड़ की ओर उन्होंने देखा तो उनके एक खोखले में एक तोता रहता था, ठीक है। 9वीं कक्षा में जो छात्र पढ़ाई कर रहे हैं अभी इस साल में, उन्हें पता होगा कि हमारे हिंदी में यह काव्य, यह कहानी काव्य के रूप में दी ही गई है, ठीक है। सुनो भाइयों तुम्हें सुनाते। एक बात और मुझे भी समझ में आती है, वैसे भी 10वीं कक्षा में है, 11वीं में है, 12वीं में है, वो सब के सब 9वीं कक्षा में इस कहानी को पढ़कर गुजर चुके हैं। 9वीं कक्षा वालों को अभी अभ्यासक्रम में दी गई है, इसीलिए आप सब इस कहानी से परिचित होंगे। सुनो भाइयों तुम्हें सुनाते आज एक प्राचीन कहानी, जो है अति सुंदर अति अद्भुत सचमुच कहानियों की रानी। पुण्य भूमि काशी की महिमा चारों दिशा में थी अति गुंजित, देवों सहित देवपति उनको लखकर होते थे अति हर्षित। गुजर रहे थे इंद्र एक दिन, एम आखी कविता रजू करवामां आवेली छे कहानीना रूपमां, ठीक है। तो तोते को प्रश्न पूछा कि इतने हरे भरे तरु को, पेड़ पौधों को छोड़कर तुम इस सूखे वृक्ष पर क्यों बैठा है। फिर तोते ने जवाब दिया, उत्तर दिया, वो बहुत असरकारक या तो फिर इंटरेस्टिंग था। क्या कहा तोते ने कि महाराज यह तरु पहले बहुत सुंदर था, बहुत हरा भरा, बहुत बड़ा था, सभी पंछी इस पर आकर बैठते थे, इसका फल खाते थे, यहाँ रहते थे। मेरा जन्म भी इस तरु पर ही हुआ है, इस पेड़ पर ही मेरा जन्म हुआ है। मैं जब उड़ना सीख रहा था तब मेरे हौसले को मैंने इस तरु पर ही संभाला है। इसी तरह बचपन से लेकर ये मेरा साथी रहा है। फिर एक दिन वन में एक शिकारी आया, उनके विष से बुझे बाणों ने इसकी यह हालत कर दी है। तब से यह सूखने लगा, सूखता ही गया, आज यह पूरा सूख गया है। और दूसरी बात, मैं अपने इस बचपन के साथी को छोड़ना नहीं चाहता हूँ, इसलिए इसके ऊपर मैं रहता हूँ। इसी तरह अपनी मित्रता का भाव तोते ने उसमें दिखाया, अपनी बातों में इंद्र के सामने प्रस्तुत किया। अब इससे आगे देखें क्या होता है। उत्तर तो मिल गया, देखिए उत्तर क्या दिया तोते ने कि बचपन का साथी, इंद्र का प्रसन्न होकर वर मांगने को कहना। अपने बचपन के साथी को इसके दुख में साथ देने की भावना, तोते ने कहा ना मैं इसके दुख में थोड़ा हाथ बटाना चाहता हूँ। इसी भावना, मित्रता की भावना तोते में देखकर इंद्र ने कहा कि तुम मुझसे कोई वर मांग लो, वरदान मांग लो, मैं आपके ऊपर प्रसन्न हुआ हूँ। तो फिर तोते की इच्छा क्या थी
कि तरु को फिर से हरा भरा कर दीजिए। तो तोते ने कहा कि हे देव, इस सरोवर फिर से हरा भरा हो जाए ऐसी मेरी इच्छा है। तो इंद्र ने तोते की बात को मान्य रखकर तथास्तु या फिर एवमस्तु कहकर उनको वरदान दिया। फिर वह तरु फिर से हरा भरा हो गया, फिर से नई शोभा निराली सुंदरता लेकर वो लहराया। और वहाँ कहानी हमारी पूरी होती है। इसमें से हमें कोई सीख मिलती है। क्या सीख मिलती है? पहली तो बात ये सीख मिलती है कि हमारे भी कोई साथी, दोस्त, मित्र बचपन के होंगे, उसे हमें साथ देना है, सुख दुख में हमें साथ रहना है। क्यों? क्योंकि बुरे वक्त में उसे हमारी ज़रूरत है, और हम जब बुरे वक्त में फंसेंगे तब हमें उसकी ज़रूरत है। जब हम एक दूसरे को साथ देंगे, एक दूसरे के साथ मिलजुल कर चलेंगे, तब हम अपनी लाइफ में, अपने यह जीवन में अच्छी तरह से जी सकते हैं। मित्रता एक बहुत बड़ा धन है। हम अपने जीवन में जितने मित्रों को बढ़ा सके, ज़्यादा बना सके, इतना बनाना चाहिए। देखिए, सीख के बारे में मैं आप लोगों से विस्तृत बता रहा हूँ। आपको इतना ज़्यादा सीख में नहीं लिखना है। आपको क्या करना है, कोई नया पैराग्राफ शुरू करके लिखना है कि हमारे जीवन में कोई सच्चा साथी, कोई अच्छा मित्र जो हमारे अनुरूप हो, ऐसे मित्र को हमें साथ देना चाहिए, या तो फिर सुख दुख में साथ देना चाहिए। बस इतना ही लिखेंगे तो भी सीख मिल जाएगी। अब जब आप सीख लिखेंगे तो आपको क्या करना है? पहली तो बात देखिए, सीख के बारे में बात की है। जब आप नया पैराग्राफ लिखते हैं तब इसे डबल इन्वर्टेड कॉमा में सीख लिखनी है, ठीक है? और वह लाइन के नीचे हम अंडरलाइन करेंगे। सीख के बारे में हम बात कर रहे थे तब ऐसा कुछ बताया नहीं था, लेकिन ये अगर आप करेंगे तो भी कोई बुरा नहीं है, वो हाईलाइट दिखेगा थोड़ा सा, ठीक है? अब इस कहानी का टाइटल क्या होगा? शीर्षक भी डबल इन्वर्टेड कॉमाમાં, ગુજરાતીમાં જેને કહેવાય ડબલ અવતરણ ચિહ્ન અને કા સિંગલ અવતરણ ચિહ્ન, આવી રીતે બે બાજુ કરી અને તમારે નીચે અંડરલાઇન કરવાની છે। બની શકે તો ડબલ કરો તો હાલે, પછી એમાં તમારે શીર્ષક કહાનીનું લખવાનું છે। હવે તમને વિચાર આવતો હશે કે કહાનીનું શીર્ષક શું આપવું? તો જે ઉપદેશ મળે છે, જે બોધ મળે છે કહાનીમાંથી, એને સુસંગત ને એને અનુરૂપ હોય એવું શીર્ષક આપવું। हम कह सकते हैं इसे सच्ची मित्रता। सच्ची मित्रता। इसी तरह हम कहानी को यहाँ पूर्ण करेंगे। दूसरी बात, जब हमारे पास अब अगर आपको कहानी लेखन के बारे में कोई रंज रह गया है, अपने मन में कोई क्वेरी है कि सर इस बात हमें समझ में नहीं आई है, तो आप कभी बिंदास पूछ सकते हैं, इसके बारे में हमारे साथ चर्चा कर सकते हैं। अगर हमारे पास समय होगा तो कहानी लेखन के बारे में और ज़्यादा बात हम करेंगे। लेकिन मैं आशा रखता हूँ कि आप सभी को कहानी लेखन कैसे लिखना है, कैसी कहानी लेखन करना है, इस बात संपूर्ण रूप से ख्याल में आ गई होगी। आपको एक काम करना है कि ऐसी थोड़ी सी बहुत सी कहानियाँ जहाँ से आपको मिले उसके पहले मुद्दे पढ़ने हैं, फिर कहानी की पढ़ाई, कहानी लिखनी है, क्या शीर्षक दिया है, क्या सीख दी गई है, इन सभी बातों को देखना है। इससे मुहावरा होने के कारण आप अच्छी तरह से कहानी लिख पाएंगे। बराबर? तो આપણો આ પીડીએફ આજે અહીં આપણે પૂરો કરીએ। મિત્રતાની વાત આવી એટલે આપણી ગુજરાતી ભાષા તો બહુ અદ્ભુત છે। પીડીએફ પૂરો કરતાં પહેલાં, મારી વાણીને વિરામ આપતા પહેલાં મિત્ર વિશે તમને એક નાનકડી વાત કરી દઉં। આપણા લોક સાહિત્યમાં એવું કીધું છે મિત્ર વિશે, કદાચ તમે ક્યાં સાંભળ્યું હોય કે ન સાંભળ્યું હોય, પણ मित्र कीजिए मर्द मित्र मन दर्द मिटावे, मित्र कीजिए मर्द खुशामत कर नहीं खावे, मित्र कीजिए मर्द काम विपत में आवे, मित्र कीजिए मर्द सत्य कहकर समझावे। તમારે આમ ખોટું બોલીને પ્રશંસા કરીને કંઈક લઈ લેવાની દાની તોળો ભાઈબંધ કરતા નહીં। મિત્ર કીજીએ મર્દ મિત્ર મન દર્દ મિટાવે। તમારા મનનું કંઈ દુઃખ હોય તો તમે એને કહી શકો ને એ તેને દૂર કરી શકે। કેમ આ તોતાએ કીધું કે ઝાડને ફરીવાર સારું કરી દો એમ। मित्र कीजिए मर्द मित्र मन दर्द मिटावे, मित्र कीजिए मर्द खुशामत कर नहीं खावे, मित्र कीजिए मर्द काम विपत में आवे, मित्र कीजिए मर्द सत्य कहकर समझावे। मित्र एवो शोधवो ढाल सरीखो होय, सुख में पाछळो
દુઃખમાં આગળ હોય, નકર ઘણા એ ઉલટું કરી નાખે, સુખમાં એ કે વાહે હોય, દુઃખમાં સુખમાં એ કે મોજ થઈ જાય, દુઃખમાં પાછળ હોય ને એવું કાંઈ નહીં. મિત્ર એવો શોધવો જેસો કુવા કો કોષ, પછાડ્યો પાણી દીએ અને રુદિય ધરે નહીં રોષ. આવી તો મિત્રતા વિશેની ઘણી બધી વાતો અને ચિંતન ચર્ચાઓ કરી શકાય, પણ ટૂંકમાં તમે આખી વાત સમજાવશો કહાની લેખન વિશે. આશા રાખું છું કે બધું તમે સ્પષ્ટ રીતે સમજ્યા અને શીખ્યા છો. છતાં કાંઈ રંજ હોય તો ગમે ત્યારે પૂછજો. થેન્ક યુ. આપણો આજનો તાસ અહીં પૂરો કરીએ. અસ્તુ.